علیکم پیارے ناظرین اور میرے پیارے دوست، میں عامل بابا بہت ساری باتیں آپ کو بتا چکا ہوں، کچھ ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں۔ میں نے آپ کو اگر ویڈیو دیکھے ہوں گے تو میں اپنا تعارف کرایا ہوں، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے یہ میری پہلی ویڈیو ہوگی، اس لیے ہر ویڈیو میں اپنی کچھ تعارف میں کرا دینا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ آپ کو میرے ویڈیو کی اہمیت کا اندازہ لگ سکے۔ دیکھیے، میں 22 سال سے روحانی لائن میں ہوں، عامل بابا ہوں، روحانی بابا بھی لوگ مجھے بولتے ہیں۔ اتنا سے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے قریب 120 سے زیادہ چلے کیے ہیں، عمل کیے ہیں، اور لگ بھگ 150 سے زیادہ روحانی لشکر میرے پاس ہے جو اللہ کے حکم سے میرا کام کرتے رہتے ہیں اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق۔ بس ایک چھوٹا سا تعارف میں نے آپ کو کرایا ہے۔ میں اس ویڈیو میں یا اس کے پہلے والے ویڈیو میں یا اس کے بعد والے ویڈیو میں جو آپ کو جانکاری، جو علم شیئر آپ سے کر رہا ہوں، یہ سب میرے تجربے کا ہے، جو بڑی محنت مشقت اس کے لیے میں نے اٹھایا ہے۔ میں نے ہر چیز قربان کیا ہے، میں نے اپنا وقت دیا ہے، محنت دیا ہے، صحت، نیند، چین، سکون، پیسہ، زمین جائیداد بھی میں نے اس کے لیے بیچ دیا، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ میں نے اپنے گھر والوں کی ناراضگی کا بھی ہم شکار ہوئے، کیونکہ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ میں اس لائن میں آ سکوں یا اس میں قدم رکھ سکوں۔ تو اس طرح سے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے تو مجھے یہ بھی تھا کہ یہ علم اتنی محنت اور مشقت سے میں نے حاصل کیا کہ حقیقت میں فری میں دینے کا دل نہیں کرتا تھا۔ جو دل کی بات ہے سو میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن عمر بڑھی، جب میں 19 سال کا تھا تو اس لائن میں آیا تھا، آج لگ بھگ 42-43 سال کی عمر ہو گئی ہے، تو سوچ وقت کے ساتھ ساتھ بدلی، حالات بدلے، تو مجھے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں، اب اس علم کو عام کر دینا چاہیے، چونکہ مجھے احساس ہوا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سچے دل سے اس علم کے طلبگار ہیں، لیکن ان کو کہیں کوئی صحیح استاد نہیں ملتا ہے، صحیح علم نہیں ملتا ہے۔ اگر کتاب سے علم سیکھنا چاہیں تو یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ کتاب میں بھی صحیح علم، اب جیسے مان لیجیے کہ کتاب ہے، اس میں 200 طریقہ دیے ہوا ہے عمل کا، الگ الگ طریقے سے، تعویذ، گنڈا، یہ وہ بہت سارا کچھ ہے، اس میں سے مشکل سے 5-10 ہی ہے جو کام کے ہیں، اور وہ بھی ادھورے ہیں، مطلب وہ بھی پورے اچھے طریقے سے اس میں بتایا نہیں ہے، وہ بھی آدھا ادھورے طریقے سے بتایا ہوا ہے، لیکن 5-10 ہی جو ہے کام کے ہیں۔ 200-300 میں سے 5-10 ہی کام کے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا میں نے دیکھا ہے کہ ایک کتاب میں کوئی بھی عمل کام کا نہیں ہے، اور کسی میں 2 عمل مل جاتا ہے، کسی میں 1 مل جاتا ہے۔ اس طرح سے میں نے 64-65 کتابیں پڑھی، جو بھی مارکیٹ میں کتابیں موجود تھی 1400 سال سے لے کے آج تک کے بیچ میں، وہ ساری کتابیں میں نے پڑھی۔ اس میں سے بس یہ سمجھ میں آیا کہ کیا کیا ہے اس میں، لیکن جو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے، اس دنیاوی زندگی میں جو اس کو عمل کرنے کا طریقہ ہے، اپنی زندگی میں اتارنے کا جو طریقہ ہے، وہ اچھا نہیں ہے۔ وہ کبھی کبھی کسی کتاب میں مجھے ملا، کوئی 1 عمل 2 عمل اس طرح سے۔ بہرحال میں نے بہت مشقت محنت کر کے اس علم کو حاصل کیا۔ ظاہر ہے کہ جس چیز کے لیے اگر آپ محنت زیادہ کریں گے، قربانیاں زیادہ دیں گے،
तो उस चीज से आपका अटैचमेंट, लगाव, मोहब्बत बहुत हो जाएगा। फिर जब अल्लाह की तरफ से जब हुक्म होता है, हिदायत मिलती है, तो फिर बांटने की तौफीक भी मिल जाती है। उसके पहले कोई बांट भी नहीं सकता। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से दौलतमंद लोग हैं, लेकिन दौलत को रखे रहते हैं, अपने पर भी नहीं खर्च करते हैं, दूसरों पर भी नहीं खर्च करते हैं। अब कुछ ही लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो अपनी दौलत को खर्च करते हैं, अपने ज्यादा से बड़ी बड़ी दौलत के बड़े हिस्से को दुनिया के लोगों की जरूरत पे खर्च करते हैं। मगर ऐसे कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को इसकी तौफीक, इसकी समझ मिलती है कि दौलत का सही इस्तेमाल कब, कहां, कैसे करना है। बहरहाल, तो मैं इसमें आपको एक ऐसे इल्म के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें थोड़ी सी मेहनत है। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ये इल्म उसके लिए है जो इस इल्म का दीवाना है, जो इस रूहानी इल्म को हर हाल में पाना चाहता है, जो मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहता है। ये इल्म उसके लिए बहुत मेहनत नहीं है, मगर थोड़ी सी मेहनत है। चलिए मैं आपको बताता हूं। ये अमल है सूरे नास का। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। ये जो सूरा है कुरान शरीफ की सबसे आखिरी सूरा है। आज मैं इसके अमल के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि इस दुनियावी जिंदगी में आप इसका फायदा किस तरह से उठा सकते हैं। देखिए, इसका अगर कोई आमिल बनना चाहता है और इसका फायदा उठाना चाहता है तो वो कैसे उठाएगा, इसका क्या फायदा हो सकता है। अगर आप इसका आमिल बनते हैं, अमल करते हैं, तो एक फायदा ये कि किसी के ऊपर जिन, शैतान, खबीस अगर है और उसको परेशान करता है तो आप उसको भगा सकते हैं, इसका तावीज देकर, इसका गंडा देकर, या फिर इसका पानी पढ़ के अगर आप उसको फूंक के दे पीने के लिए, है ना, 11 दिन 21 दिन, तो वो ठीक हो जाएगा। एक तो ही हो गया। दूसरी बात है कि कोई कहीं भागा हुआ है और गया हुआ है और उसका कोई चाहने वाला है जो उसको अपने पास बुलाना चाहता है, चाहे उसकी बीवी हो, चाहे उसका शौहर हो, चाहे उसका महबूब हो, चाहे उसका आशिक हो, चाहे उसकी माँ हो, चाहे उसका वालिद हो, चाहे बेटा हो, कोई भी हो जो उसको अपने पास बुलाना चाहता है या अपनी मोहब्बत उसके दिल में पैदा करना चाहता है, तो ये उसमें काम आ सकता है। उसके बाद जो आमिल है वो अगर उसको पढ़ के किसी को इस नियत से देगा कि वो उससे मोहब्बत करे, तो वो मोहब्बत करने लगेगा। तो ये जो है, ये 4 फायदे आपको इस अमल से मिल सकते हैं अगर आप इसके आमिल बनना चाहते हैं। तो ये 4 फायदे कम नहीं है, दुनियावी जिंदगी में अक्सर इसी की जरूरत पड़ती रहती है। एक अमल कर लेने से आपके ईमान में तरक्की हो सकती है, क्योंकि ये अमल फेल नहीं करता है, ये अमल हर हाल में पास करता है। जो तरीका हमने बताया है, अगर आप उस पर अमल करते हैं सही तरीके से तो चलिए अमल का पूरा तरीका समझते हैं। देखिए, खाने पीने का इस अमल में कोई परहेज नहीं है। पहली बात, जो बहुत से लोग डर जाते हैं जलाली जमाली, इसमें कोई रोजा भी नहीं रखना है। बस इस तरह से परहेज नाम का कोई चीज नहीं है, मगर थोड़ा सा जो शर्त है वो ये है कि आपको ये अमल करना पड़ेगा किसी भी कब्रिस्तान में। ठीक है, अब ये हिंदू के कब्रिस्तान, अगर कोई हिंदू कर रहा है तो वो मुरघट में भी कर सकता है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुसलमान के कब्रिस्तान में करे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि वहां जब आप मुसलमान के कब्रिस्तान में करेंगे तो वहां आपको परेशान करने शैतान वहां भी आता है, मगर कम आता है, कम आएगा। मगर हिंदुओं के माने जो शमशान है वहां आपको परेशान करने ज्यादा आएगा। हालांकि वो ज्यादा जो आएगा वो अगर रूहानी आंख आपकी नहीं खुली है तो आपको दिखाई नहीं देगा,
बल्कि वो आपके सपने में आएगा, ख्वाब में आएगा, बाकी ऐसे कोई परेशानी नहीं होगी। तो बहुत कम लोग हैं जिसको दिखाई देता है, रूहानी आँख खुली रहती है, नहीं तो नजर कुछ नहीं आएगा। बस एक जगह कहीं पे साफ सुथरी जगह कब्रिस्तान में देख लेनी है और वहां पे बैठ के या खड़े खड़े बस 300 बार इसको पढ़ना है। एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और उसके बाद ये सूरह को शुरू करना है, और बस एक ही बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और 300 बार इस कुल औज़ु बिरब्बिन नास को शुरू से लेके आखिर तक पढ़ लेना है। पढ़ के मैंने बता भी दिया है। अब एक टाइम बना के पढ़ना है, कब्रिस्तान में पढ़ना है, और इसका जो सही वक्त है पढ़ने का वो मान लीजिए कि कम से कम आप 9 बजे के बाद, यानी 10 बजे 11 बजे से लेके और सुबह की अजान से पहले तक में इसका कोई एक वक्त मुकर्रर करके पढ़ना है। और वहां पे पढ़िए जहाँ पे लोगों की आमद नहीं हो, आमदोरफ्त नहीं हो, ताकि वो डिस्टर्ब नहीं कर सके, और रूहानियत जो आएगी वो भी डिस्टर्ब होती है आने जाने वाले लोगों से। इसी वजह से इसको अकेले में पढ़ना है, और कोई शर्त नहीं है, बस पढ़ लेना है उसी वक्त पर जो वक्त आपने मुकर्रर किया है। पहला दिन हर रोज उसी वक्त पे जाना है। 2-4-5 मिनट कभी कभी इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं है, बस आपने पढ़ लिया। पढ़ने के दौरान हल्का फुल्का आपको कुछ एहसास हो सकता है, जैसे कि कुछ इधर उधर आपको सांप घूमता फिरता दिखाई दे सकता है, कुत्ता आपको दिखाई दे सकता है, बिल्ली दिखाई दे सकती है। यही 3 जानवर आपको आगे पीछे आपके करेंगे। मगर कभी कभी क्या होता है कि जो ओरिजिनल में कुत्ता बिल्ली सांप होता है, जिसको खुली आंख से हर इंसान देखता है, वही रहेगा। और आपका जो पढ़ाई से जो रूहानियत आया है वो भी इसी शक्ल में आपको अक्सर यही तीनों में से कोई शक्ल में वो आएगा आपके पास। मगर वो आएगा तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और अगर आपका सही हो तो वो आएगा। अगर आपका वो मुवक्किल है, पढ़ने से आया है, तो आपके सामने आएगा, बैठेगा, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और फिर वो पढ़ाई खत्म होते ही अपने आप वो चला जाएगा। बस वो आपसे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बस वो चला जाएगा। ये चीज है। तो ये अमल जब आपका पढ़ लिया तो अमल पूरा हो गया, इसमें और कुछ नहीं है। कोई मुवक्किल आपको सामने से आके कोई बातचीत नहीं करेगा, इस तरह से ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। कोई डरने की बात नहीं है, कोई पागल उगल होने की बात नहीं है, ठीक है। मगर नियत इरादा सही होनी चाहिए और इंसान हिम्मतवर होना चाहिए, क्योंकि कब्रिस्तान में रात में शमशान में जाना सबके बस की बात नहीं है। ये तो मेरे भी बस की बात नहीं थी भाई, है ना। मैं तो बिना पढ़े रात में नहीं जा सकता था, अकेले नहीं जा सकता था। फिर मैंने धीरे धीरे क्या किया कि अपने डर को भगाया, भगाते भगाते उसमें भी बहुत वक्त लग गया। मतलब सोचिए कि 2001 से जब शुरू किया था तो 2009 में जाकर मेरा डर के जो है वो खत्म हुआ था। वो बहुत सारे मरीज को जब मैंने देखा, जिन शैतान को जलाया, उससे मुलाकात बात हुई, प्रैक्टिकल किया तो कुछ उससे गया, कुछ रूहानी तरक्की हुई तो उससे गया। उसके अलावा जो मेरे अंदर जो शौक था आगे जिन को, रूहानी मखलूक को देखने का, उसको हासिल करने का, तो ये जो शौक था उसकी वजह से भी डर को काबू करना पड़ा, और उस डर पे मैंने विजय हासिल करना पड़ा। बहुत आसान नहीं था मेरे लिए यह रास्ता, बस शौक था, पाने का जज्बा था, इसलिए कुर्बानी पर कुर्बानी मैं देता गया। तो अगर आपके अंदर भी ऐसा कोई शौक अगर जगेगा जैसे मेरे अंदर में था, तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपके पास नहीं है तब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सब खेल है शौक का, जज्बा का, और जो कहते हैं कि सही भूख और प्यास, इल्म की जब सही भूख और प्यास जगती है तो फिर वो कोई किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होता है।
कहीं भी झुकने के लिए तैयार होता है, किसी का हर बात मानने के लिए तैयार होता है, पैसा लुटाने के लिए तैयार होता है। यहाँ तो लोग मुझे फ़ोन करते हैं और कांटेक्ट करते हैं, बस एक छोटा सा इम्तहान लेते हैं, बस उसी में फेल हो जाते हैं, एकदम छोटा सा। कभी कभी तो लोग ऐसे फेल हो जाते हैं, जैसे मैं उसको कहता हूँ कि फ़ोटो भेजिए आप अपना नाम एड्रेस, उसमें फेल हो जाते हैं, वो नहीं भेजते हैं। उनको लगता है कि उनका फ़ोटो हम क्यों लेंगे, उसका क्या फ़ायदा, बस उसको हम इल्म बता दें, उनसे हम कोई सवाल ना करें, बस डायरेक्ट हम उनको इल्म बता दें और वो मुझसे फिर कांटेक्ट छोड़ देते हैं। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको इस इल्म की प्यास किस हद तक है। चलिए, तो फिर हम बात शुरू करते हैं असली मौजू पे, कि जब आप सूरह नास का अमल अगर आप कर लेते हैं, उसके बाद उसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो सूरह नास का गंडा, जैसे आप धागा ले लीजिए काला, उसको गिरह को थोड़ा सा गोल कर लीजिए, फिर उसमें सूरह नास को आप 11 बार पढ़ के 3 बार फूकिए और उसको गिरह को कस दीजिए, ऐसे करके टाइट कर दीजिए। इस तरह से उसमें 11 गिरह लगा सकते हैं, है ना। 11 हर बार में 11 बार पढ़ना है और वो गंदा किसी के गर्दन में डाल दीजिए,